Yes. Professor Karandikar, Director of Indian Institute of Technology, Kanpur. Professor Panda, Dean of Student Affairs. The other, if there is any other faculty member, I have not seen anyone else, but all the students from IIT Kanpur and all the students of IITs, 23 IITs, because I was told that this is a pan IIT event. So I believe that students from all across the country, from different IITs, have already joined, and they are joined digitally. A very good afternoon to all of you. It's my privilege to come and talk to you in this hall where I had various classes, L6. And when I entered this hall, I remembered many incidences in this hall. One of the incidents I remember, Professor Sharma. He was a professor of sociology. I do not know whether you know him or not. I don't know whether he is Professor Sharma. And he was used to giving examples when I was in Philadelphia, when I was in Sydney, when I was in Germany, when I was in this, when I was in this. He was a professor of social science, social studies. And he used to take two different parts of the world as if things have come from there, and he used to give examples there. He used to keep a beard like this. I mean, there's a huge beard like you had seen Rabindranath Tagore. Something of the same kind. It's a small height, but a beard almost, matching his height. So this was, that was his Professor Sharma's thing. And we used to mimic him. Like in the class, outside the class, in our conversations, we used to say that, well, when I was in Philadelphia, when I was in London, when I was in Paris, that's how we used to mimic him. And I'm not able to say the same way, but we had good number of people who used to participate in Ramayana, so they could mimic very well, because he used to speak in a particular manner. So one fine morning in this same class L6, Professor Sharma had come a bit earlier, and we were all sitting, and most of us were mimicking him, not even knowing that he is here in the hall. Because that day he had come clean shave. And we had never seen Professor Sharma in clean shave, so we couldn't recognize him. So after hearing some mimicry, he started saying that when I was here and when I was there, so then we could immediately catch he is the right person. And then he go on. So that I'm reminded of that L6 event when I was in, I think, third year. Well, मैं सामान्य तौर पे सभी जगह हिंदी में बात करता हूँ और बहुत प्राउडली बात करता हूँ, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और मैंने दुनिया भर में घूम करके बहुत सारे वर्ल्ड फोरम्स पे इन डिफरेंट कैपेसिटीज में इंटर गवर्नमेंटल एक्सचेंजेस के बारे में जगह जगह बात किया। आई फाइंड पीपल फील प्राउड इन टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। चाहे रसिया हो तो रशियन बात करेगा, जर्मनी होगा तो जर्मन में करेगा, जापान में करेंगे तो जापानीज में करेगा, फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच में करेगा। बट हम लोग हर जगह जाकर के वहाँ पे हम अंग्रेजी में बात करते हैं। एंड दिस हैज हैपेंड, वन ऑफ द इवेंट व्हिच ट्रिगर्ड मी व्हेन आई वाज जॉइंट सेक्रेटरी फॉर्मर इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कि हमारी इंटर गवर्नमेंटल टॉक थी और उसमें वन साइड मैं लीड कर रहा था, अदर साइड somebody फ्रॉम द रशिया वाज लीडिंग। दिस वाज अ मीटिंग इन मॉस्को, और वहाँ पे हम बात कर रहे थे। मैं कुछ 2-3 लाइन बोलता था, कोई उसको ट्रांसलेट करके फिर रशियन में बोलता था, सामने वाला कोई रशियन में बोलता था, फिर कोई ट्रांसलेट करके उसको अंग्रेजी में बोलता था। तो वी हैड दिस कन्वर्सेशन फॉर ऑलमोस्ट 3.5 hours। और उसके बाद में लंच पे गया, स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, very fluent English. I mean, as good as us, मैंने not कहीं किसी प्रकार का गैप नहीं। तो मैं उससे पूछा कि हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं? अगर हम वो सारे कन्वर्सेशन अगर हम अंग्रेजी में सीधे करते, मे बी आवर कन्वर्सेशन कुड हैव बीन मच मोर यूजफुल, मच मोर फ्रूटफुल। ओके, यू अंडरस्टूड मी, आई अंडरस्टूड। यहाँ पे तो मैं
जब तक 2-4 लाइन बोलूं तो मैं रुकना पड़ता था, तब तक वो हमारे ट्रांसलेटर को समझ नहीं आया, और तुम भी बोलते थे तो वो समझना पड़ता था। He says this is our official business rule that any conversation has to be in Russian. But here I am in a gathering for the lunch, इसलिए मैं आपसे अंग्रेजी बोल रहा हूँ. And similar incident happened in Tokyo. Similar incident happened in Dutch, that is in the Hague. So such kind of thing, if they feel proud of their own language, why should we not? इनफैक्ट अभी हाल में आपको मालूम होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने मेडिकल एजुकेशन को पूरा हिंदी में ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज चालू कर दी। एंड लॉट ऑफ मेडिकल टेक्स्ट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। बहुत सारे राज्यों में, हमारे प्रदेश में भी बहुत सारे, वी आर आफ्टर आवर इंस्टीट्यूशंस टू गेट देम ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। और वाई हिंदी? आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर आप पढ़ोगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि नॉट इन हिंदी, बट कहती है कि हमारी लोकल लैंग्वेजेस, हमें अपनी, जैसे कि तमिल है तो तमिल में, जर्मन, हमारा जो मलयाली है तो मलयालम में, तेलुगु है तो तेलुगु में, बंगाल है तो बंगाली में, और साथ में हिंदी में भी, कि जब हम जिस भाषा में सोते हैं, जागते हैं, सब कुछ काम करते हैं, वो सारा का सारा अगर हम उसी भाषा में करेंगे, वी आर मोर एक्सप्रेसिव, वी आर मोर क्रिएटिव, वी कैन थिंक, वी कैन इमेजिन, वी कैन क्रिएट थिंग्स इन आवर ओन लैंग्वेज। क्योंकि लैंग्वेज इज नथिंग बट it's only a media to translate what we are thinking or what we are planning. तो अगर वो लैंग्वेज जिसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो तब से मैंने निर्णय लिया कि अब मैं हमेशा किसी भी फोरम पे, अगर वहाँ पे अंग्रेज नहीं, ऐसे लोग नहीं जिनको समझ में नहीं आती बात, मैं हमेशा हिंदी में बात करूँगा। और एज ए सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मस्ट हैव बीन वन ऑफ द रेयर सेक्रेटरीज हु हैव स्पोकन इन हिंदी ऑन ऑल फोरम्स। सारे के सारे फोरम्स में मैंने हिंदी में बात की। ओनली विद दिस कमिटमेंट। यहाँ पे मैंने IIT में देखा, उस समय IIT जब हम लोग आपके जैसे हुआ करते थे, जब थर्ड ईयर के बाद लोगों की भाषा तो नहीं बदलती थी, टंग बदल जाती थी। पता नहीं आजकल होता कि नहीं आता, कि मैं इतने सालों के बाद IIT में, मैं यहाँ पे पास आउट किया 1983 में, तो हम लोग जब थर्ड ईयर में पहुंचे तो बहुत लोग टंग ट्विस्ट करके बोलना चालू कर देते, एज इफ दे आर ऑलरेडी इन द फॉरेन लैंड। वो किसी विदेश, किसी वो अमेरिका पहुंच गए और वहाँ पे उसी तरह से बोलेंगे तो लगेगा कि वो अमेरिकन हो गए, कि ताकि दिस यूज्ड टू बी, आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे साथी हुआ करते थे, दे यूज्ड टू चेंज देयर द वे दे स्पीक इंग्लिश। लेकिन अब ऐसी जरूरत नहीं है। आज हिंदुस्तान में जिस प्रकार से हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो आपने देखा होगा पिछले 8.5 साल में, एक हमारी भारतीय अस्मिता के बारे में, भारतीय स्वाभिमान के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय विरासत के बारे में, भारतीय भाषाओं के बारे में जिस प्रकार का हमें एक गौरव का पल दिया है, और जो सोच में हमें परिवर्तन लाया है कि हम अगर अपने मूल तक हम वापस हो गए तो बहुत आगे चले जाएंगे। तो मैं इसलिए आपसे, अगर आप लोगों को कोई अगर दुविधा ना हो, अगर किसी को कोई कठिनाई ना हो, तो मैं हिंदी में बात करूं, कोई कठिनाई तो नहीं है? नहीं, ठीक है। सो आई टेक योर वर्ड। मैं आपकी कंसेंट से अब आगे मैं हिंदी में ही बात करूंगा, जहाँ जरूरत होगा अंग्रेजी भी प्रयोग कर लेंगे। मेरा अंग्रेजी से कोई दुश्मनी नहीं है, अंग्रेजी आवश्यक है। हम सब जगह, हर फोरम पे अंग्रेजी में बात करते हैं जहाँ पे हमें आवश्यक होता है। लिखते पढ़ते सब कुछ है, लेकिन हम बात जहाँ भी हमारे अपने लोगों से बात करनी है तो वो हम हिंदी में ही बात करना चाहिए। मैं इसके पहले कि आपको पब्लिक पॉलिसी के बारे में बात करूं, मैं अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। दैट गिव्स यू अ कॉन्टेक्स्ट। मैं बहुत छोटा सा गांव, उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अगर आपको वाकिफ होंगे, मऊ, बनारस से करीब 125 किलोमीटर आगे, मऊ के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। और मेरी पढ़ाई, शुरुआत की पढ़ाई पेड़ के नीचे हुई। पेड़ के नीचे मैंने पढ़ना चालू किया, क्योंकि हमारे पूरे स्कूल में, जो हमारा प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल में केवल 2 कमरे थे, एक बड़ा कमरा, एक छोटा कमरा, जो बरामदे को घेर करके कमरा बना दिया था। तो बाकी सारे बच्चे अलग अलग पेड़, कोई नीम के पेड़ के नीचे, तो कोई आम के पेड़ के नीचे, कोई पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसे हमारे क्लासेस हुआ करते थे। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। बट भगवान ने कुछ रास्ता और ही बना रखा था, तो मैंने बिकेम, वहाँ पे क्लास 5 करने के बाद क्लास 6 वहीं गांव के इंटर कॉलेज, हमारे गांव से कुछ 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे मैं इंटर कॉलेज में क्लास 6 में वहाँ पढ़ाई की। और पहले बार अंग्रेजी सीखना चालू किया क्लास 6 में।
क्योंकि पहले उस समय हम लोग को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती थी, ABCD क्लासिक से स्टार्ट होती थी, बट भगवान ने कुछ और ही रास्ता बना रखा था। सो एक भारत सरकार की स्कॉलरशिप हुआ करती थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री की, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप थी, जिसमें 100 बच्चे को सेलेक्ट हो जाते थे। बड़ा कंपटीशन था, बहुत काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्रोसेस था, मुश्किल कंपटीशन हुआ करता था। अगर वो सेलेक्ट हो जाते थे तो उन बच्चों को सरकार के बच्चे बन जाते थे। वो भगवान की कुछ ऐसी निर्धारित कर रखा था कि मैं सरकार का बच्चा बन गया। जब मैं क्लास 7 में बलिया में मेरे फादर पोस्टेड थे, साधारण सी सर्विस में हुआ करते थे, उनके साथ में वहाँ पे मैंने इम्तहान दिया स्टेट लेवल पे। पहला इम्तहान स्टेट लेवल का था, उसमें मैं टॉप किया, फर्स्ट रैंक आई, क्योंकि गांव से पढ़ करके भी पहली रैंक आई पूरे उत्तर प्रदेश में। जब ऑल इंडिया टेस्ट में 5वीं रैंक आई, मुझे ऑल इंडिया 5वीं रैंक आई, और मैं सीधे सीधे गांव से निकल करके कुछ 6-7 महीने में बलिया पढ़ाऊंगा, सीधा सीधा मैं रांची पहुंच गया। रांची के पागल खाने में नहीं, मैं तो पागल खाना होता है, रांची इज ऑल्सो नोन फॉर पागल खाना। अगर आप सोचें कि पागल खाने में पहुंच गए, वहाँ का जो मेंटल हॉस्पिटल है कांके का, विश्व प्रसिद्ध कांके का मेंटल हॉस्पिटल है, तो मैं रांची पहुंच गया, विकास विद्यालय रांची, और वो एक पब्लिक स्कूल था, बहुत बढ़िया स्कूल था, आज भी अच्छा स्कूल है, बट अलग किस्म का, एक बहुत ही भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ, बिल्कुल उस हमारी सभ्यता संस्कृति से मिलकर के बिरला जी का उनका बनाया हुआ स्कूल था, बहुत बढ़िया स्कूल है, करीब 150 एकड़ में। आप सोच सकते हो कि सीधे गांव से निकल करके हम वहाँ पहुंच जाए, जबकि उनको अंग्रेजी कुछ नहीं आती थी। वहाँ पढ़ाई किया, वहाँ पढ़ने में ठीक ही ठाक था, क्योंकि गाँव में अच्छा था, तो वहाँ भी मैंने टॉप किया, और वहाँ भी मैंने वहाँ के स्कूल कैप्टन भी रहा। बहुत कुछ काफ़ी परिवर्तन हुआ, क्योंकि भारत सरकार बहुत ऐसे बच्चों को बड़ी मदद करती है जो कि इस तरह से बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको पहले उनकी अंग्रेजी सिखाने के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा उनको, और एक तरीके से पूरी तरह सरकार के बच्चे हो गए। वहाँ पे इम्तहान देना था, तो मुझे लोगों ने कहा कि IIT बहुत अच्छा है, वहाँ देना चाहिए। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस बहुत अच्छा है, उसका इम्तहान देना चाहिए। नेशनल साइंस टैलेंट एंड सर्च एग्जामिनेशन होता है, वो बहुत अच्छा, उसको करना चाहिए। हर एक चीज़ बड़े मुश्किलात थे, बहुत सारे उस जमाने में हमारे सारे इम्तहान हुआ करते थे, जैसे कि बिट्स पिलानी था वगैरह वगैरह। तो हमारे साथियों ने बहुत सारे इम्तहान का फॉर्म भरा, मैंने केवल 3 फॉर्म भरा, एक तो नेशनल साइंस टैलेंट सर्च का, दूसरा IIT का, और तीसरा जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का, क्योंकि ये कहते थे बेस्ट होता था, और उसके पहले हमारे स्कूल से किसी बच्चे का IIT में हुआ नहीं, क्योंकि बड़े बड़े वहाँ रिच बच्चे पढ़ते थे, वहाँ सारे के सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, जिनके बहुत सारे पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चे पढ़ा करते थे। मैंने इम्तहान दिया, पहला इम्तहान मैंने दिया NSTS का बलिया में, तो बलिया में हमारे फादर थे, इसलिए मैं वहाँ जाकर इम्तहान दिया। दूसरा इम्तहान दिया मैंने IIT का। जब फादर ने कहा, तीसरा ISM का इम्तहान लखनऊ में था, मेरे फादर ने कहा लखनऊ जाओ, मेरे कोई जानने वाले उनके घर पे ठहर करके इम्तहान दे देना। तो मैंने कहा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे दोनों जगह हो जाएंगे। Then I got selected in NSTS and I got selected in IIT also. दोनों जगह मेरे सिलेक्शन हो गए। NSTS में 100 बच्चों का सिलेक्शन होता था उस जमाने में, और हर बच्चे श्योर शॉर्ट साइंटिस्ट बना करते थे, तो उनके लिए सरकार अगुआ सरकार के बच्चे बन जाते थे साइंटिस्ट बनने के लिए। लेकिन साथ में IIT का सिलेक्शन भी हो गया था। तो IIT के सिलेक्शन के बाद मुझे वहाँ जब पूछा काउंसलिंग में कि भाई आप क्या करना, क्या पढ़ना चाहते हो, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं जब पढ़ता था स्कूल में तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वो कुछ सर्किट वर्किट बना लिया करते थे, मैंने देखा ऐसा कुछ हम लोग हॉबी में कर लिया करते थे। उसमें भी पैसा सरकार देती थी, हमारा कोई घर से नहीं पैसा मिलता था, सारा सरकार में पे किया करती थी। तो छोटे छोटे सर्किट थे, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बोला पढ़ूंगा। कहाँ पढ़ेंगे, तो हमने कहा BHU में मेरा काउंसलिंग हो रहा था, मैंने कहा यहीं पढ़ूंगा। और BHU में पहली बार इतना बड़ा यूनिवर्सिटी देखा था मैं लाइफ में, क्योंकि मैं गांव वाला था, गांव से निकला सीधे रांची, रांची गांव, इसकी बियॉन्ड तो कुछ करता नहीं था। तो BHU इतना बड़ा इंस्टीट्यूट देखा मैंने, इतना कभी देखा ही नहीं था। तो लगा BHU ITB IIT है, तो BHU में मैंने एडमिशन ले लिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा हो गया। और आई वॉज द फर्स्ट टॉपर, मैंने हमारा कुछ 300 रैंक था, मुझे ख्याल है 323 रैंक हुआ करता था, तो 323 पे आई वॉज द फर्स्ट एमॉन्ग द एंट्री जिन लोगों की हुई थी उसमें BHU IIT में। अच्छी बात है, वहाँ पे पढ़ाई करना चालू की। लेकिन हमारे जो जाने वाले थे उनका हर कोई स्टार्ट ही वहाँ से 850 हुआ करता, 800 850। मेरे बाद वो अगला जो रैंक था वो 800 850 के नीचे हुआ करते थे।
तो सारे कहते तुम यहाँ क्यों आए? आई वॉज फीलिंग बिट एम्बैरेस्ड कि मैं क्यों आया आखिरकार, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, nobody to guide me. तो फिर अगेन भगवान ने कोई एक गेम किया और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ बीच में, और तमाम सारे बच्चे बहुत पिटाई लगी, बहुत सारे बच्चों की पिटाई मेरे आँख के सामने पिटाई हुई। मैंने पिटते हुए देखा बच्चों को, सबसे ज्यादा पिटाई इंजीनियरिंग के बच्चों को हुई या साइंस के बच्चों को, जो बदमाश बच्चे थे वो सारे भाग गए। एंड IIT was closed, whole BHU was closed sine die for more than a month. I got a again click, let me write IIT again, and I wrote IIT again, क्योंकि मुझे लगा कि ये जगह मेरे लिए नहीं है पढ़ने लायक, and I got the rank 57 I believe, second time when I came to IIT Kanpur. That is how I landed here in IIT Kanpur. This was the year 1978. Otherwise, I would have passed in 1982, but I passed in 1983 because I lost 1 year in BHU. अब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे थर्ड ईयर तक। थर्ड ईयर के बाद सबको एक नशा आ जाता है कि अब अमेरिका जाएंगे। मुझे भी नशा, थोड़ा थोड़ा तो नशा हमें भी आ सकता था। ऐसे तो मैं बड़ा सिंपल वो गांव वाला हुआ करता था, पर थोड़ा थोड़ा नशा हमको भी आया। जब सिंपल अमेरिका जाएंगे तो हम भी जा सकते, क्योंकि उसके पहले एक नशा जो है, मेरी इंग्लैंड में मेरा एडमिशन हो चुका था, सारी स्कॉलरशिप, लेकिन मैं नहीं गया था, IIT के नाते नहीं गया था। तो देन आई वाज बिट कंफ्यूज्ड, वेरी वेल कंफ्यूज, नॉट बिट कंफ्यूज, आई टोटली कंफ्यूज, मुझे करना क्या होगा लाइफ में मुझे क्या बनना है। आई वाज मीटिंग माय प्रोफेसर्स, प्रोफेसर जो कि पढ़ने वाले बच्चे अच्छे होते हैं। मैं बता दूं, आई पास आउट विद 10.0 CPI हियर। तो यहाँ पे जब मैं अपने प्रोफेसर लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, हम करना क्या है, मैं क्या करूं जिससे कि मुझे लाइफ में कुछ एक सेटिस्फैक्शन मिले। आई मेट वेरियस प्रोफेसर्स, आई डोंट वांट टू नेम देम, लेकिन ज्यादातर लोगों ने कहा कि बच्चा तुम कितने पढ़ने में अच्छे हो, योर प्लेस इज इन अमेरिका, you will get the right opportunities in America, you will rise, you will do great work, you will make name and do this that, सारा काम किया। But somehow I was not, जैसे होता है कि आप खाना खाइए लेकिन लग रहा है कि असली खाना तो भी खाने को नहीं मिला, या अगर पानी पी रहे हैं तो भी हमारा मन नहीं भरा, ऐसा लगता है कभी कभी आपको, ऐसी फीलिंग होती है। तो मुझे मैं नहीं बल्कि हमारे साथ दो लोग थे, मेरे साथ एक पांडे अजय भूषण प्रसाद हुआ करते थे, मेरे क्लासमेट, जो कि रिटायर्ड एज ए सेक्रेटरी रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, फाइनेंस के बारे में प्रोजेक्ट है, उसके अभी वो हेड कर रहे हैं, शेयरिंग दैट प्रोजेक्ट। वो हमसे 2 साल पहले रिटायर करे, बिकॉज ही केम लेट इन द सर्विस, बट हम दोनों एक ही बैच के हैं। हम जहाँ भी जाते थे हम दोनों जाते थे, वी आर सो क्लोज फ्रेंड्स। तो एक आंसर मुझे जाकर के लगा कि अरे आई हिट द राइट स्पॉट। जैसे कि भगवान बुद्धा को हुआ कि अब हमें तो इनलाइटमेंट मिल गया, तो हमें भी लगा कि इनलाइटमेंट मिल गया। व्हेन आई met with Professor Raja Raman, I don't know, any of you know Professor Raja Raman? He is considered father of computers in India. हिंदुस्तान में कंप्यूटर को लाने वाले प्रोफेसर राजा रमन है। उनका नाम इतने रिस्पेक्ट के साथ लिया था। आज की डेट में ही मस्ट बी अराउंड 90 ईयर ओल्ड। और अभी भी जब भी मैं बेंगलोर जाता हूँ जरूर उनके घर जाता हूँ, और उनका और शांता आंटी जो उनकी जो वाइफ हैं, जो कि यहाँ पे हमारे डीन असिस्टेंट डोसा साहब के यहाँ वो सारी काउंसलिंग किया करती थी, शी वाज हेड ऑफ द काउंसलिंग, उनका दोनों का चरण स्पर्श करने में जरूर जाता हूँ। सो क्लोज। उनका बेटा था, इट वॉज अडॉप्टेड सन, वो मेरा क्लासमेट भी था, कंप्यूटर साइंस से उसने किया। उनका बच्चा जो था, दे डोंट हैड अ चाइल्ड, बट उनका एक बच्चा था जो कि मेरे साथ ही मेरा क्लासमेट था, बस कंप्यूटर साइंस। प्रोफेसर राजा रमन आज में आखिरकार तुम करना क्या चाहते? जब हमने पूछा सर हम बड़े कंफ्यूज हैं कि मैंने GRE दें, GMAT दें, कि हम टॉफल दें, कि अब हम आगे के लिए क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। सब बच्चे लोग लगे हुए, सब GRE, अब सबकी टंग ट्विस्टिंग चालू हो गई है, तो हम लोग भी टंग ट्विस्टिंग करें या कुछ और करें। He gave a counter question, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? हमने कहा यही तो मालूम नहीं है सर, तुम करना क्या चाहते हो। अगर ये मालूम होता तो हम आपको पूछने नहीं आते। आज फर्दर काउंटर क्वेश्चन, तुम किसके लिए करना चाहते हो, किसके लिए आगे का लाइफ कहाँ क्या करना चाहते हो?
हमने कहा था अपने परिवार के लिए, मेरा बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, मैं परिवार का सबसे बड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि परिवार को मैं आगे बढ़ाऊँ, जैसे मैं बढ़ा हूँ हमारा परिवार भी आगे बढ़े। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मुलेशन दिया, कहा कि तुम अभी, तुमको और लोगों ने क्या सुझाते हैं, उनका सबने कहा कि अमेरिका जाओ, तुम्हारा यू आर द फिटेस्ट कैंडिडेट फॉर अमेरिका। तुमको जो हिंदुस्तान की जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी, चाहे वो MIT हो, उस जमाने में MIT और का बड़ा नाम हुआ करता, तुम्हें MIT में एडमिशन मिल जाएगा, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन बोले तुमको वो जगह है। हमने कहा लोग यही कह रहे हैं करने, तो हमने कहा सर, वो बोले कि तुम्हारा जगह नहीं, यू स्टे बैक और तुम अपने देश के लिए काम करो। तुम्हें बहुत मौके मिलेंगे, दुनिया घूमने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। अगर तुम अमेरिका चले गए, अगर तुमको तुम्हारा एडमिशन तो हो जाएगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, और तुम वहाँ जाके बहुत अच्छा भी करोगे, कोई शक नहीं है, बट ही गेव ए फॉर्मूला, यू विल गेट इनटू द N+1 सिंड्रोम। हैव यू हर्ड अबाउट N+1 सिंड्रोम? नहीं सुना आपने? मैंने भी पहले बार सुना था प्रोफेसर राजा रमन के हाथ से, तो वो कंप्यूटर वाले थे, कंप्यूटर की भाषा बोला करते थे, और अभी भी मैं जाता हूँ उस प्यार से कंप्यूटर की भाषा। आप इस एज में भी, ही इज ए प्रोफेसर एमेरिटस इन IISc बैंगलोर, यहाँ से शिफ्ट होकर IISc बैंगलोर, उनका अलग से चैम्बर है, अलग से जब भी मैं जाता हूँ हर बार वो मुझे कुछ किताबें दिखाते कि अपने ये लिखा, ये नया चीज़ काम किया। उन्होंने कहा यू विल गेट इनटू द N+1 सिंड्रोम। N+1 syndrome means whenever you decide to come back to India, you think let me do it next year. How? से पहले तो आपको ये लगेगा कि हम इतना बढ़िया इन्वायरमेंट है काम करने का, वो इन्वायरमेंट हमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, तो एक साल और कुछ काम कर लें, कुछ और नया चीज पैदा कर लें। Then you will get married, maybe to an Indian there, or maybe to an Indian here, or maybe to non-Indian there. Something you will get married. So your spouse will always say, "Not this is not the right time. Maybe let's do it next year." तब तक तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, और बच्चों को लगेगा कि व्हाट सिट इंडिया, ये तो कुछ यहाँ रहने लायक नहीं है। तो दे विल ऑलवेज से कि भाई यहाँ पे तो एजुकेशन अच्छा है, यहाँ का लाइफ अच्छा है, यहाँ का वो अच्छा है, ये अच्छा है। तो यू विल नेवर कम बैक टू इंडिया, एंड इफ यू आर हियर देन यू विल do your best, not only for the country but also do your best for your family, for everybody all around. So don't get into the trap of N+1 syndrome. Your place is right here in India. हमने कहा सर इंडिया में क्या करना है, ये भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। हम इंजीनियर बनेंगे, छोटे मोटे किसी कंपनी में इंजीनियर हो जाएंगे, तो उतने से मन नहीं भरेगा। तो बोले जहाँ जाओ जहाँ तुमको मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिले। मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं सिविल सर्विसेज में, यहाँ पे एक सुधीर व्यास हुआ करते थे, फॉरेन सर्विस 1978, he topped IIT, he topped IAS एग्जामिनेशन। सुधीर व्यास रिटायर्ड एज एम्बेसडर, अभी कहाँ है मुझे मालूम नहीं, बट आई हैड कॉन्टैक्ट विद हिम। तो उससे बहुत लोग इंस्पायर हो गए, जब से सुधीर व्यास टॉप किया, उनका फोटो जो है CSR मैगजीन में टॉप पेज पे आया, तो तब से वो बड़े लोग उनको इंस्पिरेशन उनसे लेते थे, और उसके बाद भी कुछ एक दो लोग लेते रहे, वो आगे बढ़ते रहे। हमने कहा सर IAS, तो बोले कि अगर IAS कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, करोगे तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पुश व्हाट यू आर डूइंग हियर, इसको और तुम आगे पुश करोगे, बहुत सारा चीज तुम कर सकते हो, योर अपॉर्चुनिटीज बिकम अनलिमिटेड, एंड देन यू विल हैव सो मेनी ट्रिप्स अब्रॉड। एंड लेट मी थैंक यू, व्हाट ही सेड वाज एब्सोल्युटली राइट। अभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों आप IAS में आए, IIT एजुकेशन में इतना आपने पढ़ाई की, इतना सारा लोगों का पब्लिक मनी खर्च किया, इतनी सारी आपने किया, सारा बर्बाद कर दिया IAS बनने पे। That inspiration from Professor Raja Raman, I feel that I have contributed so much। तो अगर मैं वहाँ जाता तो शायद कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाता जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ यूज होता, ऐसे सैटेलाइट की चीज़ें बनाता जो कि हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ यूज होता, ऐसी चीज़ें मैं किया होता जो कि हिंदुस्तान या हिंदुस्तानियों के खिलाफ प्रयोग में आते। लेकिन यहाँ रह करके हम ऐसी चीज़ों को कर रहे हैं जो कि चीज़ें हमें हर वक्त प्राउड फील करती हैं कि हमने ये किया, वो किया, ऐसे किया, इस तरह से किया। अचीविंग दिस, आई एम नॉट शेयरिंग विद यू बिकॉज आई डोंट वांट यू टू बिकम ये कि आप IAS बनो और ये करो, ऐसा नहीं। आई रियली फेल्ट प्राउड टुडे, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी हाल में प्रोफेसर करंदीकर साहब के साथ लास्ट वीक आई वाज इन नोएडा, और IIT कानपुर का जो मैंने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वहाँ पे देखा, वहाँ पे स्टार्टअप देखा,
मेरा कॉन्सेप्ट बदल गया आईआईटी के बारे में। आईआईटी कानपुर में इतनी सारी अपफ्रंट टेक्नोलॉजी में इतने सारे काम कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू चेंज द फेस ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री को आपने कितने लोगों ने प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुनी है 15 अगस्त 2022 वाली? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड हिम फुली? वेरी नाइस। सो यू ऑल डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। अगर आप जिसने नहीं सुनी है, मैं भी कहूंगा कि आपको यूट्यूब पे उपलब्ध है, प्लीज जस्ट स्पेयर 1.5 आवर, 1.5 घंटा आप अपना निकालिए। तो 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 से पौने 2 घंटे की स्पीच है, बट इट इज वर्थ। अब लाइक यू रीड नॉवेल्स, यू रीड वेरियस थिंग्स, ऐसे आप जब स्पीच को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज ए पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, हाउ दिस कंट्री इज गोइंग टू चेंज। ये देश कैसे बदलने जा रहा है उसके बारे में उन्होंने उद्घोष किया है लाल किले के प्राचीर से, जहां से राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं पूरे देश को। एक देश के इतने महत्वपूर्ण नागरिक के रूप में जो कि आपको मौका मिला, आईआईटी जैसे संस्थान जो कि देश का सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित संस्थान है, वहां का एक स्टूडेंट बनने के लिए तो जो गौरव मिला है, यू मस्ट हियर प्राइम मिनिस्टर। जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उससे आपको लगेगा कि आपकी और ऊर्जा बढ़ जाएगी कि क्या हमारा देश बनने वाला है, कैसे बनने जा रहा है, कौन बनाने जा रहा है, उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे, आप करोगे तो यू विल फाइंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकम इमेंस। इतनी सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, इतनी सारी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाएंगी और आपके सोच में परिवर्तन होगा। सो आई इनवाइट यू टू काइंडली, इफ यू हैव नॉट हर्ड इट, प्लीज डू हियर इट। उसमें उन्होंने बात की 15 अगस्त 2022 को कि हमारे देश की अमृत वेला का प्रभात है आज, अमृत काल की कहा उन्होंने कि वी हैव सेलिब्रेटेड 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अपने देश की आज़ादी का 75 साल हमने अभी मनाया है, पूरा देश ने मनाया है, लेकिन हमारी नज़र जब देश की आज़ादी का 100 साल मना रहे होंगे 15 अगस्त 2047 को, उस पर होनी चाहिए। हम कहाँ पे होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे 2047 में। उन्होंने इस बात का उद्घोष किया, उन्होंने संकल्प लिया कि हमारा देश एक विकसित देश होगा, डेवलप्ड नेशन होंगे हम। डेवलप्ड नेशन हम जब छोटे बच्चे थे, पढ़ते थे, तब भी हम बात करते थे हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री। बड़े हुए, ग्रेजुएट किए, तब भी डेवलपिंग कंट्री। नौकरी में आए 3 डिकेड, अभी मेरी 39 साल की सर्विस हो रही है। इट्स ए म्यूजिक टू माई ईयर्स कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं कि हमारा देश एक विकसित देश होगा 2047 में। बच्चों, आप सारे लोग उसके साक्षी बनोगे। अगर भगवान ने हमें उम्र दिया तो मैं भी शायद साक्षी बनूंगा। मुझे मालूम नहीं, ये सब ईश्वर की, मैंने कहा ईश्वर का विधान है, कब कहाँ किससे क्या कराना चाहता है, कैसे कराना चाहता है, उसको मालूम है, हमें नहीं मालूम। हमें तो हर दिन अपना बेस्ट करने का है। लेकिन आप इस एज में, आप सारे के सारे जो पैन आईआईटी के सारे जो बच्चे डिजिटली जुड़े हुए हैं या फिजिकली जुड़े हुए हैं, आप सारे के सारे साक्षी हो गए 15 अगस्त 2047 को हमारा देश कैसा हो। लेट मी टेल यू, इसके लिए उन्होंने इस बात की, पंच प्राण की बात की। पंच प्राण, वो पंच प्राण जो कि इस देश को विकसित देश बनाने के लिए आवश्यक होगा। मैं अभी उसका विश्लेषण इसलिए नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप खुद सुने और खुद सुन करके आप इसको जो है, आप उसके बारे में मनन करें, विचार करें और देखिए उस पंच प्राण में आप कहां जुड़ेंगे, क्योंकि आपका उसमें बहुत बड़ा रोल होगा। उन्होंने बात की कि हमारे एक देश के प्रधानमंत्री हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। जब हमारा देश बड़ी एक कठिनाइयों से गुजर रहा था, हमारे सामने फूड सिक्योरिटी मेजर चैलेंज हुआ करता था, डिफेंस वॉज ए मेजर चैलेंज, और उन्होंने एक नारा दिया, शायद आप सबको याद होगा, जय जवान जय किसान का नारा दिया। सैल्यूट टू आवर फार्मर्स एंड सैल्यूट टू आवर सोल्जर्स, ये उन्होंने नारा दिया ताकि हम उनको इस स्थान पे ले जाएं, उस पेडेस्टल पे रखें जिससे हमारे देश को फूड सिक्योरिटी मिले और हमारे देश का डिफेंस भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त, क्योंकि हम लोग लूज कर चुके थे। 1962 का वॉर, जो इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, उस वॉर में हम बुरी तरीके से लॉस कर चुके थे। हमारा एक मेजर टेरिटरी हमको उनको सरेंडर करना पड़ा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब आपके जैसे मैं था, मैं भी बहुत पढ़ा करता था, आपके जैसे जब होता था मैं काफी पढ़ा करता था, और मैं समझता हूँ आप भी पढ़ते हो, क्योंकि मेरी अपेक्षा है कि समय के साथ
स्थितियां नहीं बदलती। बच्चे उतने आईआईटी वाले बच्चे पढ़े बगैर काम नहीं करता, उनका काम नहीं चलता। पढ़ेंगे, आप पढ़िए 1962 के बारे में। एक दूसरा उसके बाद परिवर्तन हुआ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में हम याद करते हैं कि पूरे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की उन्होंने संकल्पना की, जो उन्होंने एयरपोर्ट्स को परिवर्तन करने की संकल्पना ली, जो उन्होंने हमारे पोर्ट्स को परिवर्तन करने की संकल्पना ली, पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने के साथ ही साथ पहले बार उन्होंने पूरे शिद्दत के साथ एक हमारा जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, इंदिरा जी ने कराया था, हमारे उस देश के प्रधानमंत्री जिसको हम लोग जानते हैं कि एक बहुत ही पावरफुल लेडी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। लेकिन अगला जो हमारा जो पोखरण का जो हमारा जो हुआ एक्सप्लोजन हुआ जिसमें हमने इसका टेस्ट किया था, पूरी दुनिया को हवा तक नहीं लगी कि हम लोग ये करने जा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ सेकंड भी किया, जब पहला तो हमने ये आगाज किया और ये दूसरा फिर से हमने रिपीट किया, तब भी किसी को पता नहीं लगा। तब जबकि दुनिया की इतनी सारी सैटेलाइट, इतनी सारी चीजें, एवरीबडी इज वॉचिंग यू। दैट इज द पावर ऑफ साइंस, दैट्स द पावर ऑफ साइंस। ये विज्ञान की वो ताकत थी जिसका प्रयोग किया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। पूरी दुनिया ने कह दिया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम हिंदुस्तान से संबंध नहीं रखेंगे, सैंक्शन करेंगे। उन्होंने कहा इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर द होल वर्ल्ड। आप बच कैसे सकते हो हिंदुस्तान के बगैर? हमारी ताकत हमारे कंज्यूमर्स, हमारे लोग हैं। एवरीबडी हैज टू बाउ डाउन। ही हैज यूज्ड द पावर ऑफ साइंस। और इस पावर ऑफ साइंस के लिए उन्होंने एक शब्द जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जो तीसरा डायमेंशन दिया कि साइंस को सैल्यूट टू द साइंस। एंड इसका आपने एक नजारा देखा जो कोविड की एक त्रासदी आई अभी हाल में, कोविड-19 2020 फरवरी मार्च। प्लीज टेक योरसेल्फ बैक। आप लोग, भगवान ने आपको चैतन्य बनाया है, बहुत बड़ा ज्ञान दिया है, आप अपने आप को पीछे ले जाकर के देखिए। पूरे दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था। The whole world was completely feeling devastated. Economies were getting devastated. Health systems were getting devastated. जो हालत थी उसमें हमारी जो कोविड के दौरान, कोविड का फेज पहला रहा हो, झोंका रहा हो, दूसरा रहा हो, तीसरा रहा हो, things were so bad. People were feeling helpless. People had predicted that India is going to lose करोड़। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े, आपने मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऐसे 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 प्रेडिक्शन किए थे कि यहाँ पे तो एक पूरा का पूरा महम हो जाएगा। See how we handled, thanks to our doctors, thanks to our scientists, thanks to our engineers। जिस प्रकार से देश ने हैंडल किया, it became an example for the rest of the world. Today in Uttar Pradesh we have done more than, almost close to 40 crore vaccination, COVID vaccination, 40 crores। That looks so huge। देश में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। और वो कैसा वैक्सीनेशन? मेड इन इंडिया। द वर्ल्ड जब पूरा का पूरी दुनिया की पूरी इकोनॉमी खत्म हो रही थी, आज भी वो रिकवर नहीं कर पाए। और प्राइम मिनिस्टर हैड दैट कमिटमेंट कि उन्होंने एक नया संकल्प लिया, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। वी विल क्रिएट एवरीथिंग। हमारी जो जरूरत है हर चीज को हम पूरा करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा, पहले तो कहा कि हमको जो है हर चीज को हमको लोकली प्रोड्यूस करना है, देन लोकल टू ग्लोबल, हम दुनिया को देंगे। ड्यूरिंग कोविड वी हैड प्रोवाइडेड ऑल दीज थिंग्स, सो मेनी थिंग्स टू द होल वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया का स्टेचर बढ़ गया कोविड में पूरे दुनिया के सामने। द वे वी हैंडल कोविड, दैट इज पब्लिक पॉलिसी। दैट्स अ पब्लिक पॉलिसी स्टेटमेंट बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। द वे वी हैंडल इट, पब्लिक को जिस प्रकार से इस क्राइसिस को हैंडल किया गया, इट्स एन एग्जाम्पल। इट इज समथिंग विच द होल वर्ल्ड, सबने अप्रिशिएट किया, हर फोरम पे अप्रिशिएट किया। और अभी जब 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया पूरे देश को, उसमें उन्होंने चौथा डायमेंशन जोड़ा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। दैट इट इज नॉट ओनली द साइंस बट द इनोवेशंस अराउंड द साइंस।
the technology around the science. Is a salutation to all the, all the bright engineers who are in front of me. Not like me, who is no more an engineer. I'm an administrator. I manage those who are providing. I felt so great seeing this in Noida, and अभी पिछले 2 घंटे से आपके इंस्टीट्यूट में मैं घूम करके देख रहा हूँ. That is जय अनुसंधान. Salute to all the knowledge power which is converting, making life simpler. After all, science और engineering किस बात के लिए है? This is to bring ease in life of the people. This is to bring ease of doing things. जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमको बिल्कुल आसान कर दें. When we have the drone technology, when we have this artificial, हमें इतनी अच्छी चीजें सारा भी मैं देख करके आ रहा हूँ कि कैसे आप नॉन इन्वेसिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे डायग्नोस्टिक कर सकते हो. You don't have to inject anything. You just use the power of artificial intelligence and the machine learning. आप कैसे पूरी चीज को परिवर्तन कर सकते हो. Was this possible earlier? The things which are done, there are things which are done in the normal course, business as usual. Business as usual. जब चीजें जैसे हो रही हैं वैसे होने दे तो होती रहेंगी. लेकिन a public policy of startup India, make in India, Atmanirbhar Bharat, has given a strength to our scientists and engineers to come out with so many solutions, which is not only going to make the life of the people of India simpler, easier, healthier, happier, but also going to turn this for the whole world. We will become from the importer to the exporter country. We will export this technology. What you are doing here in IIT lab today, you don't know the power of this technology. I felt so happy there in Noida जब मैंने देखा कि वहाँ पे लिथियम बैटरी को लेकर के हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं. Now our bright students from IIT Kanpur, some startups from IIT Kanpur who are working there, they are coming with a technology which is going to be completely to change the whole paradigm. The way we think, the way we do is going to change. That is possible through the public policy. Today, the whole government under the Prime Minister Modi has started thinking on a different line altogether. वो अलग तरीके से देखना चालू कर दिया और अलग तरीके से देख करके पूरा पब्लिक पॉलिसी पैराडाइम चेंज किया. व्हाट इज पब्लिक पॉलिसी? आप जानना चाहेंगे पब्लिक पॉलिसी क्या है? Well, let me ask you, what is your understanding? Let me ask a couple of students who can answer this. Any of you, can you raise your hand? What is public policy? Rather than my talking, let me also interact with you. Yes? Any of you kindly raise your hand because you are all public policy people. Can somebody raise? Yes, please go ahead, introduce yourself and say, can you use the mic so that everybody can hear? Hello, I'm Sahil Tomar. Yes. Public policy is the formulation of events, how we will do things and how things should be in order to achieve a specific goal. How policies and also laws help in this to achieve certain goals. Okay. Can somebody also make address? Yes, very good. Can you pass on the mic there? Hello sir, I am Sunny. Public policy. No, your full name? Sunny Kumar Bhagat. Sir, Sunny Kumar Bhagat. Okay. So what we understand, what personally I understand by public policy term is like we actually used to make certain policy or drafts in which we integrate the technology or whatever we understand, the law, technology and whatever domain we know, what we could do the best in the favor of 360-degree benefit for the public janta or for the concerned authority for which we are drafting that policy. So. Okay. Thank you. Can I ask one of the ladies? They are silent. One of the ladies can raise your hand. I can see few of them. Can somebody make an attempt? Yes, please. Yeah, go ahead. Introduce yourself and yes, you sir, can my stand name and is- speak. Stand and speak. Yeah. So my name is Vijaya Mishra. So I will define public policy as the set Which year of. are you in? Sir, I'm PhD Y20. So I will define public policy as laws, regulations, government schemes, and all the programs that are implemented
to make governance better. Very good. Can I get one more lady anywhere from this side or that side? Yes, very good. She is a PhD student. I mean, I'm very happy to see PhD student with the our BTech students. हम तो उन्हें फुद्दा कहा करते थे और उनसे दूर रहा करते थे. Normally they were a class apart. I don't know whether you call it still, क्योंकि यहाँ IIT की लैंग्वेज बहुत सारी हमारी कुछ लैंग्वेज हुआ करती थी, तो वो लैंग्वेज में I don't know still called फुद्दा, and फुद्दा लोगों से हम हमेशा दूर रहा करते थे. I'm very happy to see that it's a part of the conversation. Very good. Thank you, Vijay. And that was only in a lighter tone. I mean, not to. Yes, go ahead. मेरा नाम राधिका पटेल है. मैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट से हूँ और मैं जो समझती हूँ क्या कर रहे हैं एरोस्पेस डिपार्टमेंट से मेरा मास्टर्स चल रहा है. मास्टर्स चल रहा है. वेरी गुड. मैं जो समझती हूँ पब्लिक पॉलिसी से ये कुछ रूल्स और लॉज होते हैं जो पब्लिक के फेवर में होते हैं और पब्लिक के मतलब पब्लिक में जो भी डेवलपमेंट्स होने हैं, जो एक पर्टिकुलर गोल के लिए हम कुछ लॉज बनाते हैं, सो उसको लाइक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक. Thank you. So वो policies. Let me paraphrase this question in a different format. एक अलग तरीके से आप बैठ लीजिए. Thank you. There is a public good and a private good. Have you heard about the public good and the private good? Can somebody raise your hand and explain to me what is the public good and the private good? Yes, please. Please pass it on. And one more lady who is doing a BTech. I mean, we had a PhD, we had a master's, so some BTech lady. I mean, let me also, he has raised the hand first. Let me get his perspective, and then I will ask one lady. So, who is this one? Otherwise, I will just raise my point, and then with my pointer, I will ask you to. Sir, myself Girish Chandra Pandey, and Girish Chandra Pandey. Yes, sir. I am currently working in the Namami Gange mission from Ministry of Water Resources. Sir, public goods and private goods, these are the two type of goods. Public goods are which are available by the government for the betterment of the society, and the private good which is by the people of the society, which is only used for their own purpose. So that is the difference between the Very good. So that brings the policy clear. Yes. Yeah. Who is this lady who is going to volunteer? Young BTech student, any of the, or there is no BTech student here? BTech or BSc or MS? Yes, here is. Yes, very good. Very good. Yes. My name is Zoya Manzar, and I would like to. You are doing what? I am a civil engineer student in BTech second year. Very good. Public good is जो सब सारे पब्लिक्स के लिए यूज हो सके. लाइक सारे गुड्स होते हैं, कुछ नॉर्मल पब्लिक जिसे यूज करके मतलब उसे ये कर सके, बट प्राइवेट इज जो एक मतलब खुद के लिए एक यूज कर सके. लाइक हम लोग जो पॉलिसी बनाते हैं. बहुत बढ़िया. थैंक यू. लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू जिसने रिस्पॉन्ड किया. कैन वी एक्नॉलेज देम? So thank you. I acknowledge all of you who raised hand, and I know that और भी बहुत सारे लोग रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे. बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आई वोंट बी एबल टू उनके बात सुनना चाहूँगा. छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आप सड़क देखते हो, आप कोई सड़क देखते हो, जैसे कि आपने देखा हम जब यहाँ पे आए तो उसको मैं पूरी रोड लेकर के IIT कानपुर तक आया. दैट्स अ रोड. और वहाँ पे आपने मेट्रो देखा होगा, मेट्रो लेकर के आ सकते हैं. एक तो वो हुआ. और जब हम IIT कानपुर के अंदर घुस करके जब हम इसके अंदर आए तब पब्लिक गुड इज द मेन रोड. जब मैं अंदर आया तो इज अ प्राइवेट गुड ऑफ IIT कानपुर. इट इज नॉट ए पब्लिक गुड, इट्स अ प्राइवेट गुड. या आपका जो मेन रोड से आपने घर पर जाने के लिए रास्ता बना लिया, दैट्स अ प्राइवेट गुड. आपने स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुना है? कितने लोगों ने नाम सुना है? वेरी गुड. सो यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट पीपल. आप बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हो. मे बी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, इसलिए हम जब थर्ड ईयर के बाद तय कर लिए तो हम भी पढ़ने लग गए थे, बार पढ़ने लग गए थे. चलो, तो दिस इज स्वच्छ भारत मिशन. जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन इज अ पब्लिक गुड. इट इज टेकिंग द हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑफ द होल कंट्री. चाहे वाटर का हो, चाहे सॉलिड वेस्ट का हो, या हमारा फीकल के बारे में हो, जो भी सब चीज़ वो पब्लिक गुड है.
बट हम जब घर में अपना टॉयलेट बनाते हैं तो दैट्स नॉट ए पब्लिक गुड, इज ए प्राइवेट गुड। तो पब्लिक गुड के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाई जाती है, द पॉलिसी विच विल इम्पैक्ट पीपल एट लार्ज, लोगों के लाइफ को पूरा पूरा का फर्क पड़ेगा। और प्राइवेट गुड वो हुआ जो कि हमारे अपने लिए, जैसे कि पहले भी स्टार्टअप होते थे, ऐसा नहीं कि स्टार्टअप अभी पैदा हुआ चला। आई मीन ऑल दिस कंपनी, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी, आप जो किसी का नाम लीजिए, चाहे आपकी अंबानी का नाम ले लीजिए कि जो आपका रिलायंस है, स्टार्टेड एज ए स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, बट वो स्टार्टअप आज मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर स्टार्टअप वो बन करके बड़ी 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 फॉर्म में बन चुका है। बट नाउ गवर्नमेंट एज ए पॉलिसी इज प्रमोटिंग दिस पब्लिक गुड स्टार्टअप, बिकॉज सरकार ने रियलाइज किया कि अगर ऐसा हम काम करेंगे तो ऐसा काम करने से इतनी सारी हमारे टैलेंट्स हैं, इतने सारे हमारे पास इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, अदर हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनमें इस प्रकार की चीजें हैं जो कि उसके नॉलेज से लेकर के वो हम नॉलेज पूल करके ऐसे गुड्स बनाएंगे जिससे लोगों की लाइफ बदल जाएगी, लोगों की लाइफ आसान हो जाएगी, हम हेल्थ सिस्टम बेहतर से रन कर पाएंगे, हम अपने एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर कर सकेंगे, एग्रीकल्चर में मल्टीपल टाइम्स हम ग्रोथ ला सकेंगे। या उससे हम अगर कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं, अगर ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन अगर 5% बढ़ा देंगे तो आपको लगता है कि 5% एक्सट्रैक्शन बढ़ गया, बट इट रन्स इनटू मिलियंस ऑफ लीटर्स व्हेन यू टॉक अबाउट ए कंट्री लाइक इंडिया, है ना। तो या तो आप कोई चीज घटा दिए, कुछ चीज आपने बढ़ा दिया, कोई चीज आपने आसान कर दिया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस चल गया। तो ये पब्लिक पॉलिसी के तौर पे अगर हम उसको परस्यू करते हैं, और उसको करने के लिए सरकार कानून बनाती है, सरकार कानून को लागू करने के लिए तमाम किस्म के डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जारी करती है जो उसको अपने एम्पावर करते हैं, कानून से एम्पावर करते हैं, ऐसे गाइडलाइंस बनाती है जिसके तहत हम लोग काम करेंगे, उसको गाइडलाइंस बनाते हैं जिसके तहत काम करेंगे। तो सरकार का एक काम करने का तरीका होता है, और पब्लिक पॉलिसी पहला काम होता है पॉलिसी बनाना। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देना, अपना एग्जांपल ये होगा कि आपको देन यू विल रिलेट विद इट। जब ये कोविड का इतना बड़ा महामारी हुआ, इतनी बड़ी जो काफी चैलेंजेस हुए, तो उस चैलेंजेस के बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यालय के द्वारा कुछ एक सेक्रेटरी जो कुछ ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट थे जिससे डायरेक्टली पब्लिक को इम्पैक्ट हो सकता था, उनको डायरेक्शन हुआ कि आप लोग कुछ ऐसी चीजें बनाएं कि जिससे इस समय जो माहौल है हम अर्थव्यवस्था को सुधार कर सकें, या हम जो लोगों को ऐसा माहौल दे सकें जिससे कि उन पर फिर से पॉजिटिविटी आ जाए। और इसका एक प्रेजेंटेशन के लिए कहा गया कि सारे प्रेजेंटेशन करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी भी थे और उनके साथ कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण भी थे, कुछ वरिष्ठ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी और वो तमाम सारे लोग थे, उसमें मेरा भी नाम था। तो उसमें हमने एक प्रेजेंटेशन किया। पहला चीज एक मैंने कई 4 चीजें थी, चारों चीजें एक्सेप्ट कर ली गई, चारों चीजें एक्सेप्ट हो गई, चारों चीजें जो है बाद में लागू की। बट उसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ बिकॉज आपको समझाने के लिए पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब होता है। मैंने उसमें एक बात रखी स्ट्रीट वेंडर्स के बारे में। स्ट्रीट वेंडर्स आप जानते हो, वो बड़े गरीब लोग होते हैं जो कि मतलब वो ठेले पे लाके फूल बेचते हैं, ठेले पे लाके फल बेचते हैं, ठेले पे लाके सब्जी बेचते हैं, वो ठेले पे लाके कपड़ा बेचते हैं या साइकिल में बांट करके कपड़ा बेचते हैं, जूता चप्पल बेचते हैं। ऐसे स्ट्रीट वेंडर जिनको हम लोग रेहड़ी पटरी वाले कहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों का तो पूरा धंधा बंद हो गया। धंधे तो बहुत लोगों के बंद हुए थे, लेकिन ये लोग वो हैं जिन लोगों का धंधा बंद होगा फिर दोबारा से चालू भी न कर पाए। उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि इस प्रकार से लाइफ में इतना बड़ा एक पूरा का पूरा कंप्लीट क्लोज डाउन, पूरा लॉकडाउन हो गया, सारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन हो गया, तो उनका रोज का दे वर सर्वाइविंग ऑन द डेली बिजनेस। वो कहीं से लोन लेते, जब हमने पता करना चालू किया तो मुझे पता चला कि आप गेस कर सकते हो किस रेट पे उनको, किस इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिलता होगा। कैन यू गेस? एनीबॉडी कैन मेक ए गेस? उनका इंटरेस्ट, यस, वेरी नाइस। वो डेली सवेरे लोन लिया, उसको पूरा बेचा और शाम को उसको वापस किया। आई वॉज एस्टॉनिश्ड, मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं भी आपके जैसा, मैं तो गांव वाला, लेकिन मैं भी शहरी हो चुका हूँ, शहर के जैसा रहने लगा हूँ। लेकिन जब हमने इस पर रिसर्च किया, जब जानकारी की, तो पता चला कि वो तो
100% से लेके 500% दर तक भी वो इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। माने अपना कमाई का काफी बड़ा हिस्सा वो किसी और को दे देते हैं। और ऐसा आदमी जितना बड़ा लोन लेके रह रहा है वो कैसे सरवाइव करेगा जब पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, आगे कैसे धंधा चलेगा। तो हमने ये प्रधानमंत्री के सामने हमने प्रेजेंटेशन किया कि हम इन रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ ऐसा स्कीम लेकर के आए जिसके माध्यम से हम इनको न केवल पैसा दें बल्कि आसानी से पैसा दें। ये बहुत पढ़े लिखे कम लोग हैं, बट एक बात पक्का है कि ये सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। मौके की बात है, एक आदमी टाटा बिरला बन जाता है, रिलायंस बन जाता है, और एक आदमी चाय बेचता है। केवल जब चाय पकौड़ी बेचता है वो केवल छोटा सा वो कपड़े की दुकान करता है, सड़क के ऊपर लगा करके कपड़े की दुकान करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें। वो रिस्क लेता है, पैसा लगाता है, पैसा कहीं से लोन उठाता है, पैसा लगाता है, उससे पैसा बनाता है, पैसा बना के अपने परिवार को भी पालता है और अपने बिजनेस को भी चलाता है, और वो समय से पूरा। तो उसमें आफ्टर ऑल एंटरप्रेन्योरशिप, आप कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के भी प्रोग्राम होंगे। उस प्रोग्राम में यही आप सीखते होंगे, मतलब उसको मैं अलग अलग तरीके से आप उसको जब आप फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में डालेंगे तो आप कई सारी थ्योरी बन जाएगी। तो वो एंटरप्रेन्योर तो वो भी है। इनफैक्ट मैंने इन लोगों का नाम रखा है नैनो एंटरप्रेन्योर्स। अभी मुझे नैनो टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही थी आपके आईआईटी के लैब में, नैनो टेक्नोलॉजी, मैंने इनका नाम ही रखा नैनो एंटरप्रेन्योर्स। दे आर रियल, नॉट माइक्रो, बट दे आर द नैनो एंटरप्रेन्योर्स। दे वर्क ऑन डेली बिजनेस, वो डेली वो काम करते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप उसको उतनी ही है जितनी कि बड़े वाले। फर्क ये है कि उसके पास पूंजी नहीं है, फर्क ये है कि उसके पास वो गाइडेंस नहीं है, उसके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है। वो फल खरीदेगा, फल सड़ेगा भी, फल कितना बिकेगा भी, और फल कितना उसको तो वो कैलकुलेट कर लेता है, मोटा मोटी बना लेता है कि अगर वो आम खरीद करके बेचेगा तो आम सारा अगर नहीं बिकेगा और दूसरे दिन आम कितना सड़ेगा, ये सब कर लेता। बट दिस इज ऑल ट्रेडिशनल नॉलेज। वो आपके जैसा आईआईटी में नहीं पढ़ा हुआ है, मे भी उसका फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं हुआ है, तो उसको पूंजी भी चाहिए, उसको थोड़ा सा नॉलेज भी चाहिए, तो फिर शायद वो बहुत अच्छा कर लेगा, उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये आइडिया पसंद आ गई, कहा गया मुझे कि ठीक है अब आप इसके बारे में बनाइए। और मैंने इसके बारे में जब काम करना चालू किया तो इसका जो है, आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं कहूँ गूगल करके आप देख लीजिए, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, पीएम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि के नाम से एक योजना बनाई। एंड दिस इज फर्स्ट योजना जो हमने भारत सरकार की जो स्कीम बनाई, उस योजना को कंप्लीटली आईटी बेस, कहीं कोई इंटरवेंशन नहीं। मैं आईआईटी वाला हूं और मैं आईटी का बहुत यूज करता हूं, मतलब जहां भी मैं रहा हूं बहुत आईटी का प्रयोग करता हूं, इसलिए कि नहीं मैं आईटी वाला हूं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव आईटी कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ। इसलिए इसको एंड टू एंड कंप्लीट आईटी बेस्ड सोल्यूशन हमने इसको बनाया कि आपको एप्लीकेशन से लेकर के आपको जो है, अब इसका जो है एंड सोल्यूशन, जब उसको लोन मिलेगा, लोन को रीइंबर्स करेगा, उसके ऊपर जब हम सब्सिडी देंगे, जब उसको हम कोई इंसेंटिव देंगे, एवरीथिंग इज कंप्लीटली आईटी बेस्ड, नो ह्यूमन इंटरवेंशन। आप जाकर के देख सकते हो, आपको खुशी होगी कि आपके किसी मैंने आपके पुराने अलमनाई ने किसी ने इस काम को स्ट्रीट वेंडर्स में दिया, लेकिन ये मैं अकेले तो बना नहीं सकता था, तो आई नीड ए फुल कंसल्टेशन। तो उसके लिए जब एक बार प्रधानमंत्री जी सबसे होगा कि आप इसको बार बनाइए, ऐसा नहीं होता बनाइए बना के चालू हो जाए, उसके लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता, सारा करना। तो उसके बाद पूरा कंसल्टेशन प्रोसेस, मैंने बैंकों के साथ मीटिंग की, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मीटिंग की, मैंने सेबी के साथ मीटिंग, सिडबी के साथ मीटिंग की, बहुत सारे लोगों से लॉट ऑफ कंसल्टेशन हैपेंड। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मीटिंग की, उनके जो पैसों से उनके साथ मीटिंग, उनकी क्या जरूरत हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली आई मस्ट मेक अ प्रोडक्ट विच इज यूजफुल फॉर देम। हम अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, दैट मे नॉट वर्क वेल बिकॉज इट इज नॉट मेंट फॉर। हम अपने मन से स्ट्रीट वेंडर पैदा कर रहे हैं, दैट्स माई मॉन्स्टर विच आई एम क्रिएटिंग। सो उनके साथ पूरा लॉन्ग कंसल्टेशन प्रोसेस, बिकॉज उस समय कोविड के चैलेंजेस थे, 1 महीने के भीतर ये सब सारी चीजें करके, और कैसे हम लोग आईटी को, एनआईसी को सबको इन्वॉल्व किया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि ऐसा सिस्टम बनाए कि एंड टू एंड ये सोल्यूशन हो। क्या करें कि ये स्ट्रीट वेंडर्स बड़े वल्नरेबल है, अगर वो समुद्र में पैसा आपने दिया, पैसा सारा लेकर डूब गया तो क्या करेंगे। तो व्हाट आर द, उसमें हम कैसे चेक एंड बैलेंसेस रखेंगे ताकि पैसा सरकार का वापस हो, बैंक पैसा देगी तो पैसा दे करके वापस ही पैसा बैंक को मिले। क्या हम दें ऐसे इंसेंटिव दें जिससे कि उसके ऊपर भार न पड़े। एंड आई एम गिविंग दिस टास्क टू यू। पब्लिक पॉलिसी के बारे में आप जब पढ़ोगे
ये स्कीम इस प्रकार से डिजाइन की गई कि अगर आप 1000 रुपये का लोन लेते, हमने इसमें 10,000 रुपये लोन रखा। 10,000 रुपये उसमें बहुत होता है, एक स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 बहुत होता है। 10,000 रुपये का लोन लेगा, अगर वो ईमानदारी से अपना पैसा यूज करेगा तो उसमें समय से पैसा वापस करेगा तो ही गेट्स इंटरेस्ट सबवेंशन, उसका इंटरेस्ट सबवेंशन होगा। जैसे अगर किसी को 22% पे भी लोन मिलता है किसी बैंकिंग, बहुत सारे आजकल NBFC हो रखे हैं, अगर 22% लोन मिले, 18% लोन मिले, 12% लोन मिले, अलग अलग बैंक से अलग लोन मिलेगा, उस पर हम उसको इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, 7% का इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे, 7% इंटरेस्ट हम काट देंगे। तो कैसे कटेंगे? हर बार जो पैसा वापस करेगा ऑटोमेटिकली, किसी के पास एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में 7% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन हुआ उसके अकाउंट में जुड़ जाएगा। दैट मीन उसका लोन सरकार ने अदा कर दिया। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब आप इन लोगों को इस तरह से कर रहे हैं तो क्यों नहीं इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पेमेंट में, आपको मालूम है कि जिस प्रकार से वो हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन के बाद अब द होल UPI सिस्टम है कितना ज्यादा बड़ा है। आज की डेट में हम सब लोग, मैं पॉकेट में अगर मेरे पर्स में देखेंगे पैसा ज्यादा नहीं है, सारा पैसा मेरे मोबाइल में, मैं एक मिनट में सारा जो भी अमाउंट होता है तुरंत ट्रांसफर कर देता हूँ। तो अगर आप डिजिटल पेमेंट करेंगे, और डिजिटल पेमेंट का मकसद आप सोच लीजिए, इट इज नॉट बिकॉज टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो हमारी थिंकिंग वो नहीं है। हमारी थिंकिंग है टू क्रिएट ए ट्रेल ऑफ हिज ट्रांजेक्शंस, और जब वो ट्रांजेक्शन का ट्रेल क्रिएट करेंगे तो देन यू आर फ्रॉम द इनफॉर्मल इकोनॉमी यू आर ब्रिंगिंग इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी एंड यू आर क्रिएटिंग ए ट्रस्ट ऑन दैट सिस्टम। उसको आपने ट्रस्ट उस पर क्रिएट कर दिया, फिर आगे के चलने के लिए बैंक वाला उसको लोन देगा। बैंक को मालूम है कि इस प्रकार के उसके बिजनेस ट्रेल बन रहे हैं, और वो भी ऑटोमेटिक कि आपने इतने ट्रांजेक्शन किए, अगर महीने में इतने ट्रांजेक्शन किए, आपको इतना पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चला जाएगा। आप इतना करेंगे, एक 200 ट्रांजेक्शन तक एक महीने का मान करके उसको 100 रुपए की इंसेंटिव फिक्स किया। पहले 50 पे ये देंगे, अगले 50 पे ये देंगे, फिर अगले 100 पे ये देंगे। बाद में हमने उसको जब फिर ट्विक किया, उसको जब देखा कि इनको 50% दिक्कत हो रही है तो हमने ट्विक किया, एवरी ट्रांजेक्शन हम ये देंगे, बट रेट ऑफ ट्रांजेक्शन पहले 50 पे ये रहेगा, सेकंड 50 पे होगा, अगले 100 पे ये होगा। एंड इफ यू गेट बोथ दिस, आपने अगर ये दोनों लिया तो दोनों लेने के बाद आपके ऊपर 10,000 रुपए के लोन पे आप 10,000 नहीं बल्कि 9,600 ही आप वापस करें। सो योर होल थिंग इट हैज बीन डेवलप्ड। इसको अगर इट्स इंटरेस्टिंग केस स्टडी आप जाके पढ़ेंगे तो ही हैज टू सेल ऑफ लेसर अमाउंट। द गवर्नमेंट इज नॉट हियर टू मेक मनी, गवर्नमेंट हियर इज टू सपोर्ट द पुअरेस्ट अमंग द पुअर। ये हमारी पब्लिक पॉलिसी थी कि ऐसे लोगों को जो कि पूरे डिप्रेशन में चले गए, उनकी पूरी इकोनॉमी पूरी बंद हो गई, उनको वापस लाया जाए। बिकॉज स्ट्रीट वेंडर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ पब्लिक इकोनॉमी। आपका उनके बगैर काम नहीं चलेगा, स्ट्रीट वेंडर ना हो तो बहुत सारी चीजें हैं, वो फूड पॉलिश से लेकर के चाय पानी से लेकर हर तरह की चीज में उनका ना हो तो बहुत सारा हमारा काम नहीं चलेगा। आप किसी शहरों को आप जानते हैं तो कहते हैं फला जगह का पकौड़ा मशहूर है, फला जगह का वो समोसा मशहूर है, तो फला जगह का वो जलेबी मशहूर है, वो सारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं। एंड उसके बाद हमने सिडबी को इसमें एंकर किया। सिडबी बिकेम आवर पार्टनर। आज यू विल बी हैप्पी टू नो दैट जिस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट सिस्टम, द होल इकोसिस्टम, आई डोंट वांट टू डिस्क्राइब ऑल दैट, पूरा इकोसिस्टम इतना बढ़िया बना। सारे बैंकों ने इसमें तुरंत बिकेम ओनरशिप। उसमें बैंकों का लॉस न होने का उसके लिए 15% दी जाएगी, पहले 5%, 100% हम आपको रिमबर्स कर देंगे, अगले 10% के लिए हम आपको जो 75% रिमबर्स कर देंगे। एंड वी थॉट, हमारा कैलकुलेशन मेंटल कैलकुलेशन था कि 15% ज्यादा लॉस नहीं होगा, आपका डेट नहीं जाएगा। टुडे नो बैंक हैज लॉस्ट, सारा का सारा उनके वापस हो रहे हैं। अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं मेरे मोबाइल पे है, मोबाइल से मैं अभी नंबर नहीं लिया हूँ, but it had crossed more than 40 lakhs street vendors have been benefited by this scheme. And let me tell you, Honorable Prime Minister was so happy. उन्होंने कहा कि इसका सेकंड ट्रांस और थर्ड ट्रांस करिए। सेकंड ट्रांस हम अपने प्रदेश के बारे में, मुझे नंबर याद है, हमारे प्रदेश के बारे में more than 9 lakhs vendors have been benefited in my उत्तर प्रदेश। और उसका जो सेकंड ट्रांस 10,000 से बढ़ा के 20,000, और मुझे कुछ नहीं करना, 20,000 के लिए सब सिस्टम अब कंप्लीटली सिस्टम ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर पे है, आपका आपने समय से कर दिया, अब आपको 20,000 का ट्रांस मिलेगा।
अगला ट्रांस, थर्ड ट्रांस 50,000 का मिलेगा। यूपी में 1 लाख से ज्यादा लोगों को सेकेंड ट्रांस मिल चुका है, मैंने 9 लाख लोगों को फर्स्ट ट्रांस मिल चुका है और 1 लाख ज्यादा लोगों को सेकेंड ट्रांस मिल चुका है। एंड थर्ड ट्रांस के लिए भी लोगों ने अप्लाई कर रखा है। दिस इज पब्लिक पॉलिसी। द पब्लिक पॉलिसी इज दिस इज, एंड वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट बिकॉज वी हैव टू वर्क विद द पब्लिक। इनफैक्ट पब्लिक पॉलिसी पहले जो बनती थी, पब्लिक पॉलिसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यू हैव अंडरस्टूड पब्लिक पॉलिसी और नॉन पब्लिक पॉलिसी क्या फर्क होता है। मोर देन पब्लिक मेकिंग द पब्लिक पॉलिसी, यस पब्लिक पॉलिसी मेकिंग इज ए tedious exercise, इट्स ए कंसल्टेटिव एक्सरसाइज, इट्स ए मल्टी डिपार्टमेंटल एक्सरसाइज, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट 4 decades in the government, I am now completing 39 years in Indian Administrative Service and I have worked on different positions। बहुत थोड़ी सी पांडा साहब ने बताया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस को मैंने हैंडल किया है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। आई कैन से विद फुल कॉन्फिडेंस दैट पब्लिक पॉलिसी बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है। वी फेल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। हम पॉलिसी बहुत बढ़िया बना देते हैं, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट हम तैयार कर देते हैं, ये देखने से सब कुछ ही बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इज ए ह्यूज चैलेंज। वन हैज टू रियली थिंक नॉट ओनली 360 डिग्री, आप में से किसी ने कहा 360 डिग्री, बट यू हैव टू थिंक हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी रिएक्टेड टू। आपको मालूम है आज जो सेंट्रल विस्टा पूरा देश को बन रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट। पूरा का पूरा उसको प्लान करके, एक्सिक्यूट करके, उसको ग्राउंड से लेकर के आज बढ़ाने के लिए, पूरा सिस्टम बनाने के लिए आई लेफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन एंड ऑफ दिसंबर 2021, बट उसके पहले सारा का सारा पूरा का पूरा सिस्टम को बनाया, कैसे कैसे कर सकते हैं। एंड द काइंड ऑफ चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन मेकिंग दिस सेंट्रल विस्टा, द काइंड ऑफ अपोजिशन फोर्सेज, इतने सारे फोर्सेज थे जो लोग कह रहे थे ये तो पॉसिबल नहीं, इतनी सारी निगेटिविटी थी, इतनी सारी निगेटिविटी, इतने सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनजीटी में जाकर के इसको पूरा का पूरा लोगों ने उसको घेर रखा था कि इसको बनने नहीं देना। एंड इट नीड्स सो मच ऑफ, बहुत स्किलफुल आपको उसको चाहिए कि हाउ टू नेविगेट सो दैट दिस इज राइट, बट देयर पीपल हु आर ट्राइंग टू से दैट दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट गुड, एंड आई हैड टू डू एज ए सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसको सारी चीज करके आपको मालूम होगा किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूरी चीज के ऊपर स्टैम्प रखा, सारे के सारे उसको स्टैम्प किया, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट का नींव रखी, और बहुत जल्दी पार्लियामेंट हमारी जो बनेगी, बिकॉज आई एम एसोसिएटेड विद एवरी ब्रिक बाय ब्रिक। प्रोफेसर करंदीकर भी हमारे जो टीम थे, हमारे मदद करते थे ऑन द IT पार्ट। इट्स गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग एंड a building which will be called the People's Parliament। आप जब पार्लियामेंट में जब घुसोगे, आप लोग जाकर के घुसोगे, तो आपको यू विल फील सो प्राउड कि हमारे देश का पार्लियामेंट कंप्लीटली आत्मनिर्भर पार्लियामेंट बना है, जो कि हमारे देश का हमने बनाया है, हमने सोचा है, हमने अपनी चीजों का प्रयोग किया। बहुत थोड़ी चीजें बाहर से उनको मंगानी पड़ेगी, मोस्ट ऑफ इट इज आवर थिंग, आवर कंट्रीब्यूशन। और मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ इसी सेंट्रल विस्टा को लेकर। One fine evening, I got a call from my council that people have gone. This was the second phase of COVID. आया कि आपको साहब इसके ऊपर एक PIL लग गई है। हमने तो एक PIL 10 PIL को एक साथ सुप्रीम कोर्ट में डाल करके पूरा डिस्कशन करके सारा का सारा कंप्लीटली इसको सारी जो इसके बारे में जो डिलीवरेशन सारे खत्म करके इसको चालू किया। द सेकेंड PIL केम इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। और क्या PIL था कि इस समय कोविड महामारी चल रही है, पूरी हिंदुस्तान सब कुछ रुका पड़ा, एवरीथिंग इज लॉक डाउन, और दीज पीपल हैव द ऑडेसिटी ऑफ कंटिन्यूइंग विद द वर्क्स ऑफ द सेंट्रल विस्टा। इसको तुरंत हाई कोर्ट से अंडर मैंडेमस आदेश करिए कि इसको तुरंत बंद कर दिया जाए, बिकॉज पीपल्स लाइफ हैज बीन इंडेंजर्ड, लोग मर रहे हैं, और इसकी वजह से ये सारा का सारा चीज ये डिसीजन लेके ये लोगों का लाइफ लेने वाली बात हो जाएगी। No, when I got this call, my joint secretary spoke to me, sir, ऐसा ऐसा आ गया है। And what came to my mind? Can you guess? अभी आप वो उससे अनुभव नहीं है।
मेरे माइंड में आया, क्योंकि बिकॉज एज ए अर्बन सेक्रेटरी आई वॉज knowing so many things what's happening all around, because I keep my antennas open 360 degree. मुझे मालूम था क्योंकि हर मेट्रो का मैं ही चेयरमैन था एज ए सेक्रेटरी। ऑल मेट्रो, आज मेट्रो का इतना डेवलपमेंट हुआ, आज करीब 800 किलोमीटर मेट्रो बन गया है, उसमें कितनी सारी चीज़ें, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन हाउ मेट्रो हैज बीन पुश्ड इन द कंट्री। सारी टेक्नोलॉजी से लेकर आत्मनिर्भर से लेकर के क्या क्या चीज़ें किया, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन द मेट्रो डेवलपमेंट बिकॉज आई वाज सो मच डीपली इनटू दिस। तो मुझे मालूम था कि कहाँ कहाँ हमारा काम चल रहा है, मुझे मालूम था कि स्टेट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ काम, क्योंकि सारे परमिशन तो हमसे हुआ करते थे। मैंने तुरंत अपने डायरेक्टर जनरल, हमारा CPWD इंजीनियर होते हैं, काफ़ी सीनियर इंजीनियर, उनसे मैंने कहा, फ़ोन किया कि भैया आप ऐसा करो, सबके वीडियो सबके फ़ोटो निकालो। और आई स्पोक टू द सॉलिसिटर जनरल, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, रात में मैंने उनका 11 बजे मेरे पास कॉल आया। मैंने कहा सर ऐसा है कि ये अभी PI लगी है, आप कल इसमें टाइम ले लीजिए और 3 दिन के बाद इसको मैं आपको फोटो वीडियो सब देता हूँ। इतने सारे काम यहाँ दिल्ली में चल रहे हैं, वाई आर दीज पीपल ओनली पॉइंटिंग आउट एट दिस? तब जबकि आई हैव ए फुल प्रूफ सिस्टम कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, एक निश्चित दूरी, 2 गज की दूरी, वो भी हम मेंटेन करते हैं, हर आदमी को सैनिटाइज भी करते हैं, हर कोई को पूरी सिक्योरिटी देते हैं, पूरा मेडिकल सिस्टम बना रहे हैं, टेकिंग केयर ऑफ द एवरीथिंग पॉसिबल। Still, why are they pointing on this Central Vista work? And the same thing happened, 3 दिन के बाद क्या हुआ, अगर आपने पढ़ा होगा, the Chief Justice of High Court imposed 1 lakh penalty on the PIL, जिसने किया 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाया। These people went to the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा, जब उनको सारे फैक्ट दिखाए गए, उन्होंने कहा वो तो कम लगाया, मैं तो 4 लाख लगाने जा रहा हूँ। और वो भागे। They had to pay 1 lakh rupees, but it requires not only 360 degree, it requires you to think. मैं इतनी सारी चीजें, पब्लिक पॉलिसी इसी से, वेदर इट इज स्वच्छ भारत मिशन और वेदर, आपको इतनी सारी बातें पंडा साहब ने बताया आपको, हाउसिंग के बारे में। आज 1 करोड़ से ज्यादा मकान बन गए, नोवेयर ऑन द अर्थ, नोवेयर ऑन द मदर अर्थ, आज तक किसी भी देश ने किसी भी जगह इतने सारे मकान बनाया। When I took over as a secretary in June 2017, the numbers were very minuscule, and my joint secretary was so much upset कि साहब इतना बड़ा टारगेट कैसे करेंगे। Said we can do it, just public policy, and I had the guidance of honorable prime minister, उनका जो प्रधानमंत्री जी का हमें गाइडेंस मिला, इतना सारा उनके साथ, इतनी सारी उनके साथ, इतनी सारी, I can see my whole thinking on public policy change in the last 7.5 years. जैसे हम पहले काम करते थे, नया एक हमें डायमेंशन मिला, नतीजा आज 1 करोड़ 22 लाख मकान सैंक्शन है, करीब 92 लाख, मेरे लास्ट इन्फॉर्मेशन का नॉट सेक्रेटरी सर, 92 लाख से ज्यादा मकान वहां पे ग्राउंड होके काम चल रहे हैं, एंड नियरली 65 लाख मकान कंप्लीट होकर लोग रह रहे हैं। इट इज नॉट ओनली मकान, बट मकान के अंदर पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, बिजली भी है और गैस का चूल्हा भी है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। द कंट्री इज क्लीन। हु कुड हैव थॉट ऑफ 2014 में, जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घोष किया था लाल किले के प्राचीर से, ये स्वच्छ भारत मिशन इज आवर टारगेट, हम देश को स्वच्छ करेंगे। आज़ादी के जब हम महात्मा गांधी बापू के 150 जन्मदिन मनाएंगे तो हम देश को स्वच्छ बना के उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। हु कुड हैव थॉट ऑफ इट? बीइंग अनक्लीन, अनहाइजीनिक वाज अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट। हमें पता भी नहीं चलता था कि सामने कूड़ा हमें दिखता नहीं था, बिकॉज वी वर यूज्ड टू लिविंग इन कूड़ा। ये हमें ऐसा आवाज होता, कोई विदेश से आता था तो उसके बाद लगता था कि कोई फर्क नहीं रहा है, लेकिन अपने यहाँ तो सबको इट वॉज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। बट टुडे कैन यू एक्सेप्ट इट? There is so much of behavioral change. It's part of the public policy. Public policy. Smart cities. जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि आई फील कि उन्होंने इतनी सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। स्मार्ट सिटी हमें कुछ पता भी नहीं था। Then we created the policy of smart city mission, and now we are talking from mission to the movement. सारे शहर को स्मार्ट कैसे बना सकते हैं? And let me tell you, जो मैंने कहा कि जो 2047 का भारत एक विकसित भारत होगा, हमारे सारे सिटीज भी, सारे के सारे सिटीज हमारे स्मार्ट होंगे।
आपने अगर कन्वर्सेशन सुना हो, कानपुर एट 2047, आई होप आपने सुना होगा, यहाँ पे मैंने लॉन्च किया कानपुर एट 2047. हाउ डू यू सी योर सिटी इन द ईयर 2047? Would you like the city to be the same as it is today, or you want to see in a different form? A city caring for the citizens, a city which makes sure that citizens have very ease in living, a city that is clean, absolutely clean, hygienic, beautiful, a city which caters to the people's requirement, अलग अलग उनकी जो लोगों की जो requirement है, so that they are able to achieve their full potential. Or you want the same city? The city is going to grow, absolutely, whether you do it anything or not, it's going to grow. But when 2047 the country is going to become developed, will the city remain like this or become further worse than this? A city where the mobility is not a challenge, the living is real pleasure. You want that kind of a city, or you want a different kind of a city? The choice is yours. The country is moving ahead, whether you catch that or not. And I think option is not available. We have to catch with this. We have to go with what Prime Minister Modi has decided about the country कि हम अपने देश को विकसित बनाएंगे, तो हम अपने शहर को विकसित बनाएंगे. And शहर विकसित तब तक नहीं बनेगा जब तक citizens अपने को इस चीज से नहीं जोड़ देंगे. One of my learning in the public policy making, one of my major learning in public policy making, working for 7.5 years in Government of India in the Ministry of Housing and Urban Affairs, have been two things. One, you have to make people as the stakeholders. Unless and until you make people as stakeholders, the public policy is going to be transitory. वो ट्रांजिट आपको फायदा नजर आएगी, शुरू में आपको दिख जाएगा बड़ा अच्छा हो गया. The road will become smart, maybe the place become clean. But if you want that to be sustainable, you want that to sustain over a period of time, then you have to make people as the stakeholders. In fact, I had an opportunity to meet with Ian Gale. I don't know whether you have heard him name because you are not a urban planners. Ian Gale is a big name in urban planning. He lives in Copenhagen, and I had an opportunity to meet with him. I spent 1.5 hours with him. उनके घर पे उनके साथ मैंने उनका नाम सुना तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि I would like to meet with him. When I was visiting Copenhagen, not like Dr. Sharma जो बार बार वो बात क्या करते हैं. I'm not dropping that, just किसी context में बात कर रहा हूँ. And Ian Gale has given me a book, Cities Are for the People. Cities are not for anybody else, cities are for the people. So cities have to be made people-centric, people-friendly, so that people are able to achieve all that they want to do. As a citizen, whether they are a small entrepreneur, whether they are the literary person or a sports person or a professional medical engineering, whatever it is, business, they are able to do their best. That's the cities are. ये हमारी लर्निंग किसके लिए कि हम पहला चीज कि पब्लिक पॉलिसीज में, और ऐसा हुआ है पिछले 8.5 साल में पूरे देश की कंप्लीटली हमारे गवर्नेंस की पैराडाइम बदल गई है. इनफैक्ट हम लोगों के लिए इट वाज अ कंप्लीट चैलेंज. आई मीन इट वाज चेंज ऑफ आवर माइंडसेट. I will say if somebody writes a history on Indian public policy, तो उसके बारे में लिखेगा 2014 के पहले, 2014 के बाद. 2014 के पहले इट वाज अ वाटर सेट. 2014 के पहले मोस्टली पॉलिसीज हमारी बनती थी, दफ्तरों में बन जाती थी, भारत सरकार के राज्य सरकार में. आज पॉलिसी बनती है विद लॉट ऑफ कंसल्टेशन एंड द पीपल आर स्टेक होल्डर्स. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी इज टू मेक इट सस्टेनेबल. और सस्टेनेबिलिटी तभी पॉसिबल है when you use the technology. Technology gives you a big dimension. I mean, I was able to do स्वच्छ सर्वेक्षण भी. कल हमने एक वर्कशॉप किया स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में. Can you imagine स्वच्छ सर्वेक्षण? Because I have lived with it. Continuous from 2016 onwards. हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण को एक नए लेवल पे लेकर के गए. It was not possible without the use of technology. Today we are able to do that for 40 crore people across the country living in the urban space, and that too on a continuous basis just because of the technology. We want to bring that change in the people's mind through use of technology. Whether you make the cities water secure, whether you make city safe for everybody, you can do that through
the public policy, and the public policy using technology. That's why the startups are very, very important. That's why Jai Anusandhan is very, very important. This is the new era of India, and the era of India which is Amrit Kal. The new India, the Prime Minister has sometimes said, New India. In fact, आप उत्तर प्रदेश में आप सारे रहते हो. उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, because you are all dealing with the public policy, you must have heard. Our Honorable Chief Minister is another great doer. I really enjoy working with him. इतना मुझे काम करते अच्छा लगता है. आपको अगर उनको कभी सुना होगा, कभी सुनना चाहिए आपको. Sometimes if you are dealing with the public policy, सारी चीजें आपको YouTube पे उपलब्ध है. He has taken a resolve to take this state to the $1 trillion economy. You know what is our economy right now? हमारी करीब 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, which converts into say around 270-280 billion dollar. From 270-280 billion dollar to $1 trillion is kind of quadrupling it in the next 5 years. Do you think it is possible? Nowhere in the world it has been done so far. जैसे मैंने कहा, जो प्रधानमंत्री जी ने किया कि 1 करोड़ से ज्यादा मकान हम बना दिए, 5 साल 6 साल में बना दिए. Nowhere on the mother earth people have done it. This planet earth was, the new thing was written on the planet earth with the intervention of Prime Minister Modi. And उसके लिए कितनी सारी चीजें, अभी हाल में मेरी एक किताब आई है, इसके बारे में, हाउसिंग के बारे में मैंने किताब तैयार की है. उसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा, उसमें लिखा बहुत सारी चीजें हुई है. So many things all through the public policy. Nobody could have thought that such a thing was possible. Similarly, this $1 trillion economy, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल काम है, but we are on it. It's a game, and we will make it happen. And who will make it happen? You will all make it happen. You will all make it happen. When everybody, हर कोई इस काम से जुड़ जाएगा, public policy में हर कोई इस काम से जुड़ जाएगा. It's a game which we have made so many things. इतनी सारी चीजों को किया हुआ हमारे देश में. एक और नई चीज हो जाएगी, हम $1 trillion इकोनॉमी, क्वाड्रपलिंग द इकोनॉमी को कर सकते हैं, तब जबकि सारे के सारे स्टेट के हर एक पोटेंशियल हमारे यहाँ बहुत है. उत्तर प्रदेश में आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई है, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी, अगर देखें तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इतने एक्सप्रेसवे बन गए. आज उनको दिल्ली से लेके आप ईस्टर्न यूपी तक पहुंच सकते हैं जस्ट इन 7-8 आवर्स. बुंदेलखंड पहुंच सकते हैं इन 7-8 आवर्स. इतने सारे एयरपोर्ट, 9 एयरपोर्ट चल रहे हैं, जिसमें 3 हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और 2 और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं हमारे. 5 और एयरपोर्ट हमारे अगले 2 साल में चालू हो जाएंगे. 14 एयरपोर्ट हो जाएंगे, इसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे. हमारा जो वाटरवेज, अब तो प्रयागराज से लेकर के राइट अप टू फरक्का तक वो पूरा हमारा वाटरवेज बन रहा है. फ्रीट कॉरिडोर, जो दोनों फ्रीट कॉरिडोर ईस्टर्न वेस्टर्न, अगर आपको जानकारी होगी, दे क्रॉस इन उत्तर प्रदेश, एंड द लार्जेस्ट length of the freight corridor, eastern and western freight corridor, is in Uttar Pradesh. They are going to completely revolutionize the whole thing. जिस प्रकार से हमारा पूरा लॉजिस्टिक्स का मैनेजमेंट होगा, it's going to revolutionize the whole thing. जिस प्रकार से हमारे जो अभी डिफेंस कॉरिडोर, तमाम सारे पास, अभी हम लोगों ने आपके डायरेक्टर साहब के साथ अभी हमारी लास्ट वीक और कुछ हमारे इंडस्ट्री के लोगों से बात हुई. वी आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द बेस्ट नेम, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल. Think of anything in Uttar Pradesh is ripe for it. It has such a huge potential. Through the public policy, we will push. We are trying to create an environment. There is going to be a global investor summit between 10 to 12 of February 2023. और उसके पहले हम सारी की सारी पॉलिसी, अगर कल आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, अभी कल कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी. विल फाइंड इट्स द बेस्ट पॉलिसी इन द कंट्री. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए इकोसिस्टम, जिससे कि हमारा बेस्ट टैलेंट यहाँ पे आए, बेस्ट जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पे आए, और हमारे लोगों को रोजगार मिले, हमारे लोग स्किल हो, हमारे लोगों को काम मिले, और हमारे लोग इसको लग करके अपनी इकोनॉमी को ग्रो करें. दैट्स द रोल ऑफ द पब्लिक पॉलिसी. बट इस पब्लिक पॉलिसी के बारे में जो प्रधानमंत्री जी बार बार आपने साथ सुना होगा, इज ए टीम इंडिया. ही डजंट से दैट I as a prime minister is doing everything. No. Or as a central government is doing everything. No. Or as a state government. It says Team India. The Team India constitutes, जैसे होता है कि टीम इंडिया हमारी, अभी आजकल क्रिकेट का मैच चल रहा होगा, आप लोग से कितने लोग क्रिकेट देखते हो? All of you. Oh, very good. Very good. मैं भी देखता हूँ.
अभी देखा, अभी आजकल थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाता, नहीं देख पाता, बट मैं अपने मोबाइल के ऊपर थोड़ा सा कभी कभी उससे जो है नंबर देख लेता हूँ कि क्या हुआ, कब कितने बार हम जीते. इट्स अ टीम इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट. इट्स अ टाइम फॉर रिफॉर्मिंग द कंट्री. पूरे देश को बदलने के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का मंत्र दिया प्रधानमंत्री जी. रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म. द पब्लिक पॉलिसी रोल इज इन द रिफॉर्म. Executives like me, the role is in perform, and this will lead to transform. The country will transform. This is the public policy, strength of the public policy is this, and वहाँ पे हर कोई का रोल है. Everybody has to play a very important role. आप चाहे छोटे एंटरप्रेन्योर हो, बड़े एंटरप्रेन्योर हो, बड़े साइंटिस्ट हो, छोटे साइंटिस्ट हो, छोटे इंजीनियर हो, बड़े इंजीनियर हो, everybody has to play. The role is cast. And who has to cast the role? You have to cast the role. The country is on move. The country is leading towards that. जो हमारा प्रदेश $1 trillion इकोनॉमी में तो जाएगा ही जाएगा. Let me tell you, I have a full confidence we will become $1 trillion economy. In fact, बहुत सारे वर्ल्ड के जो फोरम्स है उसको स्टडी करके अपना रिपोर्ट देना चालू कर दिए कि तो भारत $10 trillion इकोनॉमी बनने वाला है. तो ये तो होना ही है. This is going to happen. The question is whether you would like to be part of it or you would like to be. I mean, you can be a bystander who is only watching the vehicle to move in front of you, or would you like to sit on the driving seat and drive this to that destination? In fact, as IITian, I take so much of pride in being part of. In fact, at every forum I share, I am from IIT Kanpur. People know me. I mean, because my pride. I gave you the story how I could have become a BHU IT student. I could have been there in some college in my village, but that God had destined me to come here. That's how the God has destined me to work with you, and the God has destined me to come and talk to you. So you all have that potential. You should be part of it. You should feel what is that I can do. How can I get associated so that the country marches ahead during Amrut Kal to become a developed country by August 2047. I close my discussion. If you have any questions, I'll be very happy to say that. And let me thank you. Who is Shivansh Pandey? He is not here. He's in his ancestral house due to some family reason. He is the one who invited me, and he is not here. I hope he is hearing through the digital mode, because today we can get connected on the digital mode. If he is, because he is the one who contacted me, and that's how I thought there is an opportunity to talk to my colleagues, not only from IIT Kanpur. What motivated me is a pan IIT event. So all 23 IITs are going to hear. Maybe some of you are going to make big difference to this whole journey. चलिए तो शिवांश पांडे जी को बोलिएगा मैंने धन्यवाद कहा है. I thank you all for inviting me and to be part of you. Thank you.